Assalamualaikum second year. This lecture is the continuation of our last lecture. Now we start from the proton pump inhibitor. What are proton pump inhibitors? Proton pump inhibitors include omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, and rabeprazole. Proton pumps are widely prescribed because of their efficacy and safety. And these drugs are widely used for peptic ulcer and hyperacidity disorders. Before going toward the mechanism of action, what are proton pump inhibitors? Basically, the proton pumps are hydrogen potassium adenosine triphosphate enzyme system that basically exchange the potassium from the intestinal from the lumen with the cytoplasmic hydronium, and and this is the enzyme primarily responsible for the acidification of the stomach content. Third, this enzyme system is responsible for the activation of the digestive enzymes like pepsin. ओके, हमने कहा कि ये बेसिकली आपके पास प्रोटॉन पंप जो है बेसिकली एक्सचेंज करता है पोटेशियम को फ्रॉम द ल्यूमेन विद साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोनियम आयन एंड बाय दिस एसिडिफाई करता है कंटेंट ऑफ द स्टमक के कंटेंट्स को एसिडिफाई करता है, प्लस एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन. ओके. Proton pump inhibitors. Basically, proton pump inhibitors are the prodrugs, are present in a form of prodrugs. That is, what are the prodrugs? Basically, prodrugs are administered in inactivated form, and after metabolism, it gets activated. That is, it makes an active metabolite. Proton pump inhibitors get protonated in the pretal cells and make an active metabolite. In the pretal cells, they undergo a molecular rearrangement to sulfonamide cation, and sulfonamide cation is the active metabolite of this drug. This cation make a covalent disulfide bond with the acid group of the gastric proton pump. That is, आपके पास covalent bond का indicate करा है, that is the relation becomes irreversible. That is the blocking is irreversible type. कोवलेंट क्योंकि ये आपके पास कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है इस पंप के साथ, दैट इज वाई आपके पास जो है वो इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग कॉज करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम सिस्टम की, एंड देयर बाय इट शट ऑफ द एसिड सिक्रीशन. Proton pump inhibitors also inhibit the gastric mucosal carbonic anhydrases, and because of the inhibition of gastric mucosal carbonic anhydrase, it reduces the production of bicarbonate secretion to mucus, to, to mucus basically. Proton pump inhibitor आपका basically proton pump hydrogen potassium adenosine triphosphate basically catalyzes the final step in acid secretion. Basically आपके पास जो proton pump है ये final step acid secretion का final step catalyze करते हैं. So if these pumps are blocked, then acid secretion will never be. Acid secretion are completely stopped. Because of the blockade of this pump, acid secretion are completely stopped. Because PPIs block any stimuli induced secretion. As PPIs block any stimuli induced secretion means कि आपके पास जो जितने भी जो आपके पास प्रोटॉन पंप है बेसिकली वर्क अंडर थ्री स्टिमुलस, that is histamine, acetylcholine, and gastrin. Histamine, acetylcholine, and gastrin basically stimulate the proton pump to release acid secretion, and acid secretion are released from these pumps by the stimulus of gastrin, histamine, and acetylcholine. If these pumps are blocked, and if these pumps are blocked by proton pump inhibitors, so in the presence of blockade, and no and that is in the presence of the blockade, no stimulus received by the histamine, gastrin, and acetylcholine for the secretion of SCL. Irreversible proton pump inhibition. Irreversible proton pump inhibition means that is as it make a covalent disulfide bond with the proton pump acid group. That is why it produces a irreversible proton pump inhibition. That is आपके पास irreversible type की proton pump inhibition होती है
और इस इरिवर्सिबल टाइप की प्रोटॉन पंप इनहिबिशन जो है वो बेसिकली आपके पास जब तक रीसिंथेसिस ऑफ द प्रोटॉन पंप्स एंजाइम नहीं होते, जब तक आपके पास जो है ये इनहिबिशन यानी एसिड एसिड की सिक्रीशन फर्दर नहीं होती। रीसिंथेसिस आपके पास ग्रेटर देन 18 आवर्स में होती है, ग्रेटर देन 18 आवर्स। आपके पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर डिक्रीज एसिड बाय अप टू 95% एंड फॉर अप टू 48 आवर्स। 48 आवर्स तक के लिए 95% ऑफ एसिड सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। As these are the product and these are acid sensitive, so it is formulated in acid in enteric coated capsule. These are the lipophilic weak bases diffuses across the cell membrane, and then these are basically concentrated in the parietal canalicula. That is greater than 1,000-fold. These drugs, that is a proton pump inhibitor, get protonated in the parietal cells and converted to active metabolites, that is sulfonamide cations. Optimal effect is in between the 30 to 60 minutes, and before it is administered before meal. Short, they also possess a short half-life. Agent which has a short half-life. Hepatic cleared by the hepatic metabolism. No renal clearance is required for elimination of this drug. Clinical uses, they are more effective than H2 blocker. H2 receptor antagonist, they are more effective than H2 receptor antagonist in peptic ulcer disease, and also effective in GERD and Zollinger-Ellison syndrome and Zollinger-Ellison syndrome. And we have already discussed the Zollinger-Ellison syndrome is a gastrin secreting tumor. Zollinger-Ellison syndrome is a gastrin secreting tumor in which there is a overproduction of the gastric acid because of the increased secretion of the gastrin. Where we are, adverse effect may cause mild CNS and GI effects and decrease bioavailability of the drug that require acidity. Basically आपके पास CNS और GI effect produce करता है, and it also decreases the bioavailability of the drug that require acidity. आपकी उन तमाम ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है जो कि जिनको एसिडिक मीडिया रिक्वायर होता है फॉर ओरल एब्जॉर्प्शन, लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड क्यूटोकिनाजोल. It also inhibits P450 enzyme system and decrease the elimination of and thereby decrease, as it inhibits the P450 enzyme system, it decreases the elimination of diazepam, phenytoin and warfarin, as diazepam, phenytoin and warfarin are metabolized by the P450 enzyme system. क्योंकि आपके पास P450 एंजाइम सिस्टम के थ्रू डायजेपाम, फेनिटोइन, वारफेरिन मेटाबोलाइज होते हैं, इसलिए आपके पास इन ड्रग्स का एलिमिनेशन जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है और लाइफ जो है ब्लड आपके प्लाज्मा में बढ़ जाती है. साइड इफेक्ट्स, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, सब नॉर्मल विटामिन B12 लेवल, एबनॉर्मल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. आपके पास बेसिकली एंटेरोक्रोमोफिन cell like syndrome, enterochromosome cell like hyperplasia, hypergastриnemia आपके पास कॉज होता है. व्हाट इज एंटेरोक्रोमोफिन cell like hyperplasia? Basically enterochromatin cells are frequently distributed, these are the endocrine cells, and these are the frequently distributed in the mucosa of the stomach, and these are under the control of gastrostimulus. These enterochromatin cells are under the control of gastrostimulus. That is why the hyperplasia of the enterochromatin cells प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स आपके पास जो है वो अंडर द गैस्ट्रिन स्टिमुलस वर्क करते हैं, तो इनका अगर इस सेल का हाइपरप्लेजिया कॉज हो जाए तो आपके पास जो है वो हाइपरगैस्ट्रिनीमिया का कंडीशन कॉज होती है, गैस्ट्रिन के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं. हाइपरगैस्ट्रिनीमिया भी इसका अलग साइड इफेक्ट है. ए क्लोरोहाइड्रिया इन विच देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ HCl. GI इन्फेक्शन, बिकॉज आपके पास जो है क्योंकि HCl की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती हैं तो आपके पास जो GI इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं.
सल्मोनेला और शिगेला आपके पास टाइप इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि SCL जो है वो आपके मेजॉरिटी बैक्टीरिया को क्या करता है, वो किल कर देता है। SCL के थ्रू आपके पास ये इतना इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बेसिकली आपके पास तमाम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट को किल कर देता है। अब जब इसकी सिक्रेशन स्टॉप कर दी जाती है बाय बाय एडमिसिंग द प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, तो आपके पास सल्मोनेला और शिगेला टाइप के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी आपके पास जो है बेसिकली SCL की सिक्रेशन का कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रेटाइल सेल रिलीज करता है, जिससे आपके पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। तो आपके पास सब नॉर्मल विटामिन B12 के लेवल इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके प्रेटाइल सेल्स जो है वो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज भी डिक्रीज हो जाता है। नाउ द prostaglandin analog. What are the prostaglandin analog? Basically, prostaglandin E are produced by the gastric mucosa, inhibit secretion of the SCL and stimulate secretion of the mucus and bicarbonate. हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है प्रोड्यूस जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा से प्रोड्यूस होता है, इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ द SCL। हमने इनिशियल डायग्राम में देखा कि SCL से जो सिक्रीशन SCL की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, एंड प्लस इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, that is the production of mucus and bicarbonate produces the cytoprotective effect, produces cytoprotective effect. Basically, deficiency of prostaglandin is thought to be involved in the pathogenesis of peptic ulcer. अगर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये आपकी जो है बेसिकली पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि बेसिकली जो है वो आपके पास पेप्टिक अल्सर कॉज करती है। एक जो है वो पैथोजेनिक इंडिकेशन है कि पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। Misoprostol, prostaglandin analog, one of the prostaglandin analog misoprostol and enprostil। बेसिकली आपके पास ये PGE1 एनालॉग है, PGE2 एनालॉग है। बेसिकली हमारे पास दीज एनालॉग सीरम हाफ लाइफ इज लेस देन 30 मिनट्स होती है, इनका लिमिटेड यूज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आपके पास साइटोप्रोटेक्टिव है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंक्रीज करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को, दैट इज व्हाई दीज आर द साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। Clinical use, basically the selective use in acid-induced GI ulcers. These are selectively used in acid-induced GI ulcer. Acid inhibition and mucosal protective effects इनका आपके पास प्रोड्यूस होता है। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा कि साइटोप्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को एनहांस करते हैं। That is why these are the mucosal protective possess the mucosal protective effect, reduces and why these are the acid inhibitors, it decreases the acid secretion because it reduces histamine stimulated cyclic AMP production. That is why these they inhibit the secretion of acid, stimulate mucus and bicarbonate secretion, enhances mucosal blood flow, increases epithelial regeneration. That is, these are the cytoprotective, vasodilatative, and inhibit the thrombocyte aggregation. साइड इफेक्ट्स इंक्लूड डायरिया, पेन, क्रैम्प्स आपके पास भी इसमें प्रोड्यूस होंगे, कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट एंड प्रीमेच्योर बर्थ। अगर जो है वो लेडीज इसको प्रेग्नेंट वुमेन यूज करेंगी तो बर्थ डिफेक्ट्स और प्रीमेच्योर बर्थ जो है वो हो सकती है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट बेसिकली आपके पास these mucosal protective agents are also known as cytoprotective compounds. These agents have several actions that they enhances the mucosal protection mechanism. Basically mucosal protection mechanism क्या है आपके पास कि mucosal protection mechanism क्या है कि हमारे पास बाइकार्बोनेट्स जो है वो बढ़ जाए, और आपके पास बेसिकली जो है बाइकार्बोनेट्स आपके पास बढ़ जाते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो म्यूकस की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तीसरा आपके पास जो ब्लड फ्लो जो है वो म्यूकस लेयर का म्यूकस लाइनिंग का ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉपर म्यूकस जो है वो जनरेट हो सके। तो इसमें आपके पास प्लस
जो है आपके पास जो है दीज एजेंट जो है वो म्यूकोजल इंजरी, प्रॉपर ब्लड फ्लो रहेगा तो आपके पास प्रिवेंट कर सकता है, ये म्यूकोजल इंजरी को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस आपके पास प्रॉपर जो है वो रिड्यूसिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन के ऊपर, और इसी तरह से आपके पास हीलिंग ऑफ अल्सर कॉज होगा। सही, अब हमारे पास जो मेजर म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स है वो कौन से हैं? सक्रोफेट, सक्रोफेट हमारे पास जो है वो एल्मोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सक्रोज है, एल्मोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सक्रोज। बेसिकली हमारे पास क्या है, आपके पास जो है ये एल्मोनियम सल्फेटेड सक्रोज के एल्मोनियम सॉल्ट्स हैं, और आपके पास इन एसिडिक एनवायरनमेंट आपके पास जो है ये pH 4, बेसिकली आपके पास जो है pH लेस देन 4 पे जो है ये पॉलीमराइजेशन कॉज करते हैं। और जो है पॉलीमराइजेशन किसके साथ कॉज करते हैं? बेसिकली हमारे पास ये पॉलीमराइजेशन कॉज करते हैं हमारे यानी कि अल्सर में मौजूद हमारे जो ग्लाइकोप्रोटीन और अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ जो है ये पॉलीमराइज कर जाते हैं, और इस तरह से ये जेल की फॉर्मेशन कॉज करते हैं, फॉर्म जेल ओवर सल्फर अल्सर सरफेस। तो आपका जो है जो अल्सर जेल लाइक पॉलीमराइजेशन की जो पॉलीमराइज इन्होंने जो पॉलीमराइज किया, बेसिकली वो उनकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो है वो जेल फॉर्म हो जाती है, जो आपके पास अब जो है वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह से एक्ट करती है ओवर अल्सर सरफेस। acid is that is it is a make a acid resistant coating over the ulcer surface with sorry polymerize and form a gel over ulcer which act as a acid resistant physical barrier। basically क्या है physical barrier। it also stimulate mucosal synthesis of prostaglandin E2। आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके पास सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट बढ़ा देते हैं। सक्रोफेट आपके पास ओरली एडमिनिस्टर की जाती है एंड इट इज नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग और हीलिंग ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर। एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स के लिए ये आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, और हम इसको जो है बेसिकली 2 आवर्स बिफोर और आफ्टर जो है वो बेसिकली दो घंटे के फर्क से जो है एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है किसी भी ड्रग के खाने के 2 घंटे के से पहले या 2 घंटे के बाद इसको एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है एसिड रेजिस्टेंट फिजिकल बैरियर्स बना देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है बहुत सी ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो इससे हिंडर हो जाती है। टेक बेसिकली दिस ड्रग को हमारे पास बेसिकली इसके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें जो है फिजिकल बैरियर बनाना है, इसलिए इट इज प्रेफर टू टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक दैट इज बिफोर मील। अच्छा जी, साइड इफेक्ट इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ कॉज करता है, मे बाइंड जैसे मैंने आपको कहा बाइंड अदर मेडिकेशन रेयरली यूज इन गैस्ट्रिक अल्सर्स। आपके पास जो है बट इफेक्टिव इन स्ट्रेस इंड्यूस ब्लीडिंग। आपके पास बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये क्योंकि आपके पास फिजिकल बैरियर बनाती है, इसीलिए बहुत सी ड्रग की बाइंडिंग के साथ जो है बहुत सी ड्रग की जो है वो एब्जॉर्प्शन के साथ को हिंडर करती है। दैट इज 2 आवर्स के जो है वो मार्जिन के साथ हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, किसी ड्रग से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद। रेयरली यूज होता है आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स में, लेकिन स्ट्रेस इंड्यूस ब्लीडिंग को जो है ये कवर कर लेता है, जो आपको स्ट्रेस इंड्यूस ब्लीडिंग प्रोड्यूस होती है उसको जो है ये कवर करना। शुड नॉट बी टेकिंग पैरेलल विद अदर एंटासिड्स, दूसरे एंटासिड्स के साथ हम इसको कभी भी नहीं दे सकते। कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट और सब सैलिसाइलेट आपके पास जो है वो और डिफरेंट एजेंट्स हैं। Basically, in gastric acid media, these agents converted into bismuth oxychloride and bismuth citrate। अब ये आपके पास क्या करते हैं, देन अगेन इट विस्टिलेट, यहाँ पे पॉलीमराइज हो रहे थे, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन भी आपके पास करिए चेन रिएक्शन है, इसी तरह से आपके पास ये चिलेट बना रहे हैं, विच चिलेट्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड अमाइनो एसिड इन द अल्सर बेस टू फॉर्म एसिड। वही आपके पास जो एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग फॉर्म करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस को, और आपके पास जो है इट हैज आल्सो बट इट पोजेस द एंटीपायलोरिक एक्टिविटी। इस आपके पास जो क्राइडल बिस्मथ जैसे हमने इस इनिशियल डिस्कस किया था कि बिस्मथ सबसिट्रेट और आपके पास जो है वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक दिया जाता है इन एच पायलोरी ट्रीटमेंट में।
Side effects include black colorization of the mouth, tongue, stool, and encephalopathy. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एंटासिड्स। Antacids are basically a drug that neutralize the gastric acid secretion. जो आपके पास जो है गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो चुका है उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेसिकली एंटासिड न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटासिड्स आर द वीक बेसिस, these are the weak bases, they raises the pH of the stomach content and decreases the acid load। बेसिकली आपके पास जो है ये pH content आपका जो है वो रेज कर देती हैं स्टमक का, और आपके जो है एसिड लोड को डिक्रीज कर देती हैं। जो एसिड लोड, वो एसिड लोड जो कि ड्यूडेम में डिलीवर होना है उसको डिक्रीज कर देती हैं। प्लस इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। Because pepsin activity is reduced because pepsin is inactivated at a pH greater than 4, and as these drugs raises the pH of the stomach, that is why it decreases the activity of the pepsin. Iron acid are given between meals and at bedtime when symptoms of hyperacidity as usually। अगर आपके पास जो है हम इसको या तो जो है मील्स के बिटवीन देते हैं या बेड टाइम पे देते हैं, जहाँ पे एसिडिटी के हाइपरएसिडिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं सोते वक्त। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक कैन प्रोलॉन्ग देयर न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। अगर उसमें जो है फूड की प्रेजेंस जो है वो उनकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी को जो है वो प्रोलॉन्ग कर देती है। सिस्टमिक एंटासिड्स। सिस्टमिक एंजाइटिस आपके पास कौन से हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट रैपिडली। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली रैपिडली एक्ट करता है, हैज अ ब्रीफ इफेक्ट एंड रेजेस द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन टू 7.4। ये आपके पास जो है सिस्टमिक एंटासिड जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक पीएच जो है वो 7.4 तक के जो है वो रेस कर देता है। लेकिन इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली जो है वो न्यूट्रलाइजिंग जैसे जैसे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl की फॉर्मेशन करता है। बेसिकली आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास रिजल्ट इन गैस्ट्रिक डिस्टेंशन एंड ब्लेचिंग। बेल्चिंग बेसिकली आपके पास क्या है कि रिमूवल एक्सपल्जन ऑफ स्टमक, एक्सपल्जन ऑफ गैसेस फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ। बेसिकली आपके पास जो है बेल्चिंग क्या है कि बेसिकली जो है गैसेस की एक्सपेल्जन होती है फ्रॉम द स्टमक थ्रू द माउथ, आपके जो है एक्सपेल आउट होते हैं। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, गैस्ट्रिक आपके पास जो है वो स्टमक जो है डिस्टेंड करता है, और बेल्चिंग मीन्स कि आपके एयर का गैसेस का रिमूवल होता है थ्रू द माउथ, जो कि आपके पास डेंजरस हो सकता है इफ अल्सर, अगर अल्सर जो है वो नियर टू परफोरेशन है। मीन्स कि आपके पास अगर अल्सर जो है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है वो कि वो परफोरेट करने वाला है, तो उस कंडीशन में बेल्चिंग का या गैस्ट्रिक डिस्टेंशन का प्रोड्यूस होना जो है वो डेंजरस हो सकता है। Unreacted alkalis is absorbed and can raise the pH of the blood. Systemic alkalosis which result in systemic alkalosis। आपके पास बेसिकली क्या होता है कि अनरिएक्टेड अल्कली जो रह जाता है वो बेसिकली अनरिएक्टेड अल्कली जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आपके पास जो अल्कली है वो बेसिकली जो है वो सिस्टमिक अल्कलोसिस पीएच ऑफ द ब्लड बढ़ा देता है और सिस्टमिक अल्कलोसिस बेसिकली प्रोड्यूस करता है, और पीएच ऑफ द यूरिन भी इंक्रीज कर देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl और बेसिकली आपके पास जो NaCl के एब्जॉर्प्शन की वजह से सोडियम लोड बढ़ जाता है, एंड दिस exacerbate detention in fluid detention in patient with hypertension and chronic congestive heart failure and congestive heart failure, hypertension and congestive heart failure। बेसिकली आपके पास सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट जब आपके पास रिटेन करने लगता है तो सॉल्यूट क्या है, इक्विलिब्रेट करने के लिए आपके वाटर को गैदर करता है, तो वाटर का आपके पास जो है वो रिटेंशन होने लग जाती है पेशेंट के अंदर, और आपके पास जो है वो बेसिकली क्रोनिक हार्ट फेलियर या आपके पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट या हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सडन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो है वो रिबाउंड एसिडिटी कॉज कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से रिबाउंड एसिडिटी होती है। रिबाउंड एसिडिटी का मतलब है कि पहले से ज़्यादा खाने से
आपके पास जो है वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाए। तो नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है ऑन टेकिंग फूड, उससे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने लगते हैं। Acid rebound is a condition basically आपके पास in which the stomach produces even more acid after the consumption of food and drink. आपके पास ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आपके पास के आर पोअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। नॉन सिस्टमिक एंटासिड जितने भी हैं वो आपके पास पोअरली एब्जॉर्ब होते हैं जीआईटी से। बफर टाइप नॉन सिस्टमिक एसिड आपके पास कौन से, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। These drugs have slow onset but longer effect. आपके onset पे इसका slow effect थोड़ा देर में आता है, लेकिन duration of action इसका longer है। और basically these raises the gastric pH 3.5 to 4. Pepsin activity the आपके पास is inhibited around pH 4, आपके पास pH 4 थोड़ा सा greater होती है, लेकिन up to some extent आपके पास पेप्सिन एक्टिविटी जो है वो रिज्यूम रहती है, जिसकी वजह से रिबाउंड एसिडिटी इसके में इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसलिए इसके साथ रिबाउंड एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट यूटिलाइज गैसिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन फॉर्म क्या करते हैं इसके, इनके जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होती, इनमें आपके पास जो मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म। इट फॉर्म्स after the neutralization of hydrochloric acid, ammonium chloride and magnesium chloride which further react with the intestinal bicarbonate। आपके पास intestinal bicarbonate से react करके ammonium carbonate and magnesium carbonate बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म इन दीज रिएक्शन गेट रीअब्सॉर्ब्ड कंपन। अब जो सोडियम क्लोराइड यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, तो हमारे पास क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपके पास जो क्लोराइड लॉस हो गए, किस में लॉस हो गए, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने में और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने में, वो आपके पास दोबारा जो है वो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किए जाएंगे। बफर टाइप नॉन सिस्टमिक एंटासिड डू नॉट डिस्टर्ब द एसिड बेस बैलेंस। आपके पास एसिड बेस बैलेंस को नहीं डिस्टर्ब करता, क्योंकि हमारे पास जो NaCl अब यहाँ पे रिलीज हो रहा है, वो क्या होता है कि जो HCl में न्यूट्रलाइजेशन में आपके क्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन में क्लोराइड लॉस हुआ होता है, उसको रिकवर कर लेता है इस सोडियम क्लोराइड से। लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट प्रोड्यूसेस डायरिया एज अ साइड इफेक्ट। नॉन बफर टाइप एंटासिड आपके पास जो है वो कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। These two are the powerful drugs with जैसे आपके पास लास्ट ड्रग्स में एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट में आपके पास क्या था, बेसिकली आपके पास स्लो ऑनसेट था, लेकिन इनका जो है फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है एंड रेज गैस्ट्रिक पीएच ग्रेटर देन 7 तक ये जो है वो रेज कर देती हैं। लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कॉज ब्लीचिंग, क्योंकि आपके पास इधर भी जो है रिबाउंड हाइपर एसिडिटी भी होगी, रिबाउंड एसिडिटी भी होगी, क्योंकि पीएच ग्रेटर देन 7 तक चला गया तो पेप्सिन की एक्टिविटी मौजूद नहीं रहेगी, पेप्सिन एक्टिविटी आपके पास जो है वो रिज्यूम नहीं हो सकती। प्लस आपके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि बेल्चिंग कॉज करता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्मेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड बट कॉज डायरिया कॉज करेंगे। एडवर्स इफेक्ट में आपके पास जो है आपके पास बेसिकली दीज ड्रग डिक्रीज ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ एजोल। एडवर्स इफेक्ट में आपके पास क्या है, दीज ड्रग डिक्रीजेज द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ एजोल फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स की जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज कर देते हैं। ये तमाम एजेंट जो हैं बेसिकली, क्योंकि आपके पास जो एंटासिड्स है ये बेसिकली जो है ओरल एब्जॉर्प्शन को क्यों डिक्रीज करते हैं कि बेसिकली जो ड्रग्स प्रॉपर एसिडिक मीडिया चाहिए होता है इन एब्जॉर्प्शन के लिए वो जो है वो नहीं मिल पाता, और जो है आपके पास जब प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी तो प्रॉपर जो है आपके पास एब्जॉर्प्शन नहीं कॉज हो पाती। एंटासिड जैसे एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरियस एंटासिड हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अच्छा जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास जो बेसिकली हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज करता है, फॉस्फेट्स आपके पास जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कॉज करता है और डिमेंशिया कॉज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हाइपरकैल्सीमिया कॉज करता है, कैल्शियम के लेवल बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हाइपर मैग्नीशियमिया कॉज करता है।
प्लस आपके पास डीप टेंडन, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जैसे वहाँ पे ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कॉज हो रही है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो लूज हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेसिकली जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, ये बेसिकली गैस है तो इसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी अलग है। अच्छा जी, एंटीकोलिनर्जिक्स आपके पास जो है पैरेंजिपिन, पायरेंजिपिन जो है बेसिकली आपके पास एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। आपके पास जो एसिटाइल कोलिन इंड्यूस एसिड सिक्रीशंस को जो है थ्रो प्रोटॉन पंप से डिक्रीज करेगा। तो आपके पास आपके पास जो है मस्कुरानिक M1 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बेसिकली जो ब्लॉक करते हैं एसिड एसिड सिक्रीशंस को, और आपके पास अबाउट इफेक्टिव H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की तरह ही इफेक्टिव होता है, और आपके पास रेयरली यूज होता है, एडजेंट थेरेपी के साथ इसको यूज़ करते हैं, एज आपके पास बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे ये यूज़ नहीं होता। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट इसके मौजूद है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक के जिन्हें तो एनोरेक्सिया, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ और सेडेशन जैसे इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपके पास जो है बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है। हेलिकोबैक्टर आपके पास क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। आपके दीज ग्राम्स कैन इंटर योर बॉडी, और आपके जो है एंड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजीली जो है ये रहते हैं। आपके पास बेसिकली दीज बैक्टीरिया अटैचेस टू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम व्हिच स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट ऑफ द स्टमक, दैट इज आपके पास ये ना अटैच हो जाते हैं स्टमक की लाइनिंग से, जिसकी वजह से ये वॉश ऑफ इजीली नहीं हो सकते स्टमक से, क्योंकि अटैच हो जाते हैं। इनके पास बड़े बड़े फ्लैजलास होते हैं जो इनको जो है बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। वंस अटैच द बैक्टीरिया स्टार्ट टू कॉज डैमेज टू द सेल, अगर ये अटैच हो जाए तो ये आपके सेल डैमेज कॉज बाय सिक्रेटिंग डिग्रेडेटिव एंजाइम टॉक्सिन इनिशिएटिंग अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्यून प्रोसेस को भी स्टार्ट करते हैं बेसिकली। आफ्टर मैनी ईयर्स आपके पास कुछ सालों के बाद दे कैन कॉज सोर्स कॉल्ड अल्सर इन द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक और द अपर पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टीन, जो आपके स्टमक से क्लोजर है उनमें स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर दैट इज जो है अल्सर कॉज करता है, और जो है आपके स्टमक अल्सर कॉज करता है। 90% केसेस में ड्यूडेनल अल्सर से 70% आपके पास जो है 90% जो है आपके पास जो है वो ड्यूडेनल अल्सर केस होते हैं, 70% गैस्ट्रिक अल्सर, 50% पेशेंट विद नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। H. pylori is accepted as a cause of chronic atrophic gastritis। आपके पास जो है हम H. pylori के H. pylori को जो है हम ऐसे क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के तौर पे लेते हैं। मीन्स कि आपके पास ये बेसिकली जो है ये क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। आपके पास अगर कंटिन्यूसली इसे अगर यानी कि इसे प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा दैट इज कैंसर ऑफ द स्टमक में कन्वर्ट हो जाता है। एच पाइलोरी क्योंकि यूरेसिस प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके पास क्या करती है विच हाइड्रोलाइजेस द यूरिया इनटू अमोनिया, और अमोनिया बेसिकली आपके पास जब रिलीज होता है या आपके यूरेसिस क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है तो यूरिया को कन्वर्ट कर लेगा अमोनिया में, और अमोनिया बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है और अपने लिए एक न्यूट्रल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाता है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। एच पाइलोरी इरिटेशन रेट जो है आपके पास जो है वह हायर फॉर 7 डेज, बेसिकली आपके पास जो है 7 डेज के अंदर एंटीबायोटिक रेजिमेंट के साथ दिया जाता है। प्रेफर्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉम्बिनेशन कौन से हैं आपके पास, बेसिकली डुअल थेरेपी में आपके पास ओमिप्राजोल 40 मिलीग्राम ओडी प्लस अमोक्सिसिलिन 1000 मिलीग्राम बीडी दी जाती है, और ट्रिपल थेरेपी के अंदर 14 डेज ट्रिपल थेरेपी दी जाती है जिसमें ओमिप्राजोल या और लेंजोप्राजोल के साथ आपके पास क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस अमोक्सिसिलिन आपके पास जो है एंड मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन इसमें एडमिनिस्टर की जाती है। मीन ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल देंगे प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन, या आपके पास क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ अमोक्सिसिलिन को प्लस करेंगे, और आपके पास मेट्रोनिडाजोल या आपके पास जो है टेट्रासाइक्लिन देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एमेटिक्स एंड एंटीमेटिक ड्रग्स, विच विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.